Hello guys, welcome to my channel. So I wanted to make a video since a very long time now. मैंने बंद कर दिया था वीडियो बनाना बीच में because of my boards. अब boards खत्म हो चुके हैं तो अभी हम बना सकते हैं and it's gonna be a unhinged kind of video जिसमें I will just tell you about what are my plans after boards, if I'm giving NEET or what am I gonna do after NEET and am I giving CUET or not. So let's get started. So let's start with the video. पहले हम बात करेंगे about my 10th का board. तो my 10th board was just mid guys. Like मैं average student हूँ. I have been an average student throughout my school life from class 1 to 12th. तो मेरा board भी इतना कुछ खास नहीं था. Also because of various other reasons, like there was a lot going on and academic downfall, some other factors in my personal life. So for that reasons, I think I was not able to perform that well, and also because I was not well while I was giving my boards. Like in between my board exam, मेरे को fever हो गया था. I also got some kind of this headache where I could not just ऐसा मैंने निकल थी. I had to look up all the time. If I would look down at the books, I would get like really bad pains right from here to my eyes area and everything. So अच्छा नहीं किया. नाउ आई कांट टॉक अबाउट इट. लाइक मैं कुछ नहीं बोल सकती आफ्टर माई रिजल्ट कि ये हुआ वो हुआ बिकॉज वट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी. एंड उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ ब्रो. लाइक आफ्टर योर एग्जाम्स आर डन, योर रिजल्ट्स आर अप एंड it's not that great. उसके बाद तुम कुछ भी बोलो, like you were sick, you were this, that, dealing with this, that. Nothing matters. Nothing. At the end of the day, it feels like an excuse. But ऐसा नहीं है. If you are dealing with something, you were dealing with something. So लोगों के लिए वो excuse होगा, but not for you, obviously. तो I think it was okay. मेरे को 88 point something % मिले थे in my boards. And that was fine to me because मैं तो expect नहीं कर रहा था ज़्यादा आ भी जाएगा. I was really not expecting. I thought कि यार I don't know. I might get 8. I was sure I'd get 80 plus, but not 85 plus. But आ गए थे and 90 तो नहीं आने वाले थे. So it was okay. It was whatever it was. I don't mind now. It's gone. Now let's talk about admission that happened after the 10th. अभी ये जो टाइम है ना, अप्रैल से मई, दिस इज़ लाइक द कोर टाइम जहाँ पे पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर कोचिंग. कौन सा कोचिंग लेना है, क्या कोचिंग लेना है, कौन सा कोर्स लेना है, क्या पढ़ूँ, कौन सा कॉलेज लूँ, कौन सा स्कूल लूँ एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड फॉर द पीपल जो मेरी तरह जिनको लाइक बेसिकली साइंस लेना था आफ्टर 10th, I think it's very important that we take some time before you come up to a big decision कि कौन सा कोचिंग लेना है, कौन सा स्कूल लेना है. क्योंकि what I did was I hurried my decision. It's so wrong. I wish I could go back in time and मैं थोड़ा सोचती before taking a particular decision. क्योंकि you know what happened, ना ही I tried to discuss it with my own self कि मुझे सच में साइंस लेना है कि नहीं लेना है. And maybe I don't regret taking science, but I regret the other things like my coaching, like the school that I chose. Everything else, I do kind of regret it. So, what happened is that मेरा अभी रिज़ल्ट आया था. एंड रिज़ल्ट मई में आता है, ठीक है. तो मेरा मई में आया था रिज़ल्ट. एंड हमारे एरिया में एलन, आकाश, ये सब कोचिंग बहुत पहले से है. सो एंड एलन का थोड़ा नाम बर्बाद हो रखा था कि बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, बहुत बकचोदी होती है. तो वहाँ पे तो पढ़ाई का वैसा माहौल है नहीं. सो माई पेरेंट्स डोंट वांट मी टू गिव take admission in Ellen or something. And Akash was very far from my house. So PW was new in my area. मतलब in my area क्या है, थोड़ा दूर था, but it was still there and वो नया आया था. And PW का तो इमेज ही ऐसे बन रखा है ना कि बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है. नो डाउट अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है. आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट डाउन एनी कोचिंग और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट. लेकिन मेरे एरिया में ऑफलाइन सेंटर नया आया था PW का. एंड आई थॉट अगर ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन में इतना हाइप है, ऑब्वियस सी बात है ऑफलाइन भी वैसा हो सकता है. सो बिकॉज अलक पांडे का बहुत नाम है, PW का बहुत नाम है, वी वेंट एंड वी टुक एडमिशन इन PW. नाउ what I realized after this 2 years of being in coaching, not even 2 years actually, मैंने बीच में कोचिंग छोड़ दिया था, was that ये कोचिंग वाले ना सब सेम स्क्रिप्ट रट लेते हैं. वो लोग सेम मेथड में चलते हैं, ठीक है. पहले दे विल आस्क यू कि कौन सा कोर्स लेना है, PCM, PCB,
and blah blah, and most of them don't even ask percentage. मेरे केस में they did not ask my 10th का percentage at all. I was the one who tried to like tell them कि देखो मेरे 90% नहीं आए थे, because I was living in that misconception कि only the people with 90% plus can take science, and they will be the best kind of students जो science ले सकते हैं. सो मैं अलग ही ज़िंदगी जी रही थी भाई। तो मैंने उनको सामने से बोला था दैट लुक आई गॉट 88 समथिंग, मेरे को 90% नहीं आए हैं, सो इज़ इट ओके इफ आई लाइक विल इट बी गुड इफ आई टेक साइंस, इफ आई टेक पीसीबी? एंड द पर्सन हु इज़ लाइक टेकिंग द एडमिशन एंड ऑल दैट, दे वर लाइक या ऑफ कोर्स आपके पास पोटेंशियल है, तभी तो आप आए हो यहाँ पे। यू हैव द पोटेंशियल, आपको इच्छा है बनने की, हम आपको बनाएंगे ना, ऑफ कोर्स यू कैन टेक। झूठ। वो तुम्हें ना जो भी बोलेंगे सब झूठ है। वो तुम्हें जो कुछ भी ऐसा ट्राइंग टू रीअश्योर कर रहे हैं ना, डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन लाइक लाइक हर जगह से तुम्हें खुद अपना निकाल लो नॉलेज कि कैसा क्या है सब कुछ, कैसे क्या चल रहा है इन योर एरिया, कौन सा कोचिंग अच्छा है। टेक योर रिव्यूज़ फ्रॉम द सीनियर्स और द पीपल हु आर करेंटली स्टडिंग देयर। अदरवाइज डोंट गो। जैसे मैं गई थी, आई डू नॉट रियली टेक एनी काइंड ऑफ रिव्यूज़ फ्रॉम एनीवन, एंड मैं सिर्फ ऐसे गई थी कि हाँ अच्छा है, नाम अच्छा है, तो मैं चली गई थी। बट आई दैट वाज लाइक सच अ बिग मिस्टेक। एंड देन अबाउट द मनी, दे विल टेल यू कि इतना इतना है, एंड एक स्कॉलरशिप रहता है राइट, दे डू दिस वन स्कॉलरशिप पीडब्ल्यू की तरह से जो ऑनलाइन रहता है, एंड उसमें तुम्हारा जितना परसेंटेज आता है उस हिसाब से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा भी था कुछ समथिंग लाइक 20 समथिंग परसेंट मेरा था, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही दे दिया था। आई थॉट कि ओके लेट्स गिव इट, बोर्ड के बाद का ही टाइम था आई थिंक, तभी मैंने दिया था। सो आई गिव, एंड वो बस ऐसे ही था, मुझे लगा नहीं था, मैं इस पर्पज़ से वो टेस्ट दिया ही नहीं था कि मैं वहाँ पे कोचिंग में लूँगी या फिर उसका स्कॉलरशिप यहाँ पे लगता है और समथिंग। नो, आई जस्ट गिव इट। देन मुझे कुछ उनका स्कॉलरशिप का कुछ तो लगा, एंड देन दे टोल्ड अस द होल थिंग एंड ऑल दैट। दे वर लाइक डाउट क्लासेस है, एक स्टडी रूम है, ये है वो है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वट इज़ द रियल रियलिटी? दे विल नॉट टेल यू, ऑब्वियसली दे विल नॉट। जो भी बुरा बुरा है वो तो क्यों बताएंगे आपको, है ना? तो दैट इज़ अनदर मिस्टेक जो नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज़ the dummy school thing, bro. Like, what happens when you take a coaching? There, like, they will tell you कि आप ना इस पर्टिकुलर स्कूल्स में जा सकते हो, ये हमारे साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो आप इन्हीं स्कूल्स में जा सकते हो, बाकी स्कूल में आप जाओगे तो आपको इवनिंग बैच लेना पड़ेगा ना। बैच तो 3 होता है, इवनिंग, मॉर्निंग और एक भी था, ठीक है, वो मेरे कोचिंग में था। या वो कुछ उसके बचपन बाहर से लेकिन ट्वाइस बाहर से, तो मेरा डूंगा पड़ा था, तो दैट मच समझ आ गया था। देयर सम क्लासेस लाइक आफ्टरनून वाला टाइम, पूरा टाइम होता। सो इफ यू वांट टू टेक मॉर्निंग क्लासेस, दे यू हैव टू टेक अ डमी स्कूल। इफ यू वांट टू टेक इवनिंग क्लासेस, तो फिर आप जो स्कूल चाहिए वो लो, ठीक है। टेक अ गुड स्कूल, टेक अ डमी स्कूल, कुछ भी ले लो आप, इट डजंट मैटर टू द कोचिंग। बट दे विल सजेस्ट यू कि आप मॉर्निंग क्लासेस लो, क्योंकि मॉर्निंग क्लासेस ऑफ कोर्स ब्रो एवरीबॉडी वांट्स टू टेक अ मॉर्निंग क्लास इनिशियली, क्योंकि यू नो जिनको आइडिया नहीं है, जैसे कि मी फुद्दू, मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स लाइक मॉर्निंग क्लासेस ही लूँगी ना, लाइक शाम को स्कूल से आके यहाँ पे पढ़ना इज़ लाइक अ हेक्टिक, क्योंकि मेरे घर से तो दूर भी था। तो मेरा लॉजिक मेरी जगह सही था, लेकिन उन्होंने मुझे डिटेल में कुछ भी नहीं बताया हुआ था। दे वर लाइक हाँ मॉर्निंग ले लो, मॉर्निंग अच्छा है, मॉर्निंग ले लो। एंड दे प्रॉमिस्ड मी कि दे विल लाइक टेक एक्स्ट्रा क्लासेस बट लेटर, एंड दे सेड कि आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का, ये वो रहेगा, ठीक है। तो मैं मान गई थी, क्योंकि सी आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, माई पेरेंट्स ऑल्सो डिड नॉट हैव मच आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स, सो आई कैन नॉट ब्लेम एनी बडी इन दिस। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, मेरे पास ऐसा नहीं था कि कोई गाइडेंस, कोई आके बोलेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ किया था, तुम ये मत करना। जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली वो सेम चीज़ मेरे साथ नहीं हो रहा था। तो आई बेसिकली went in, made a big mistake, क्योंकि देखो what happens ना, if you take a coaching like this and तुमने डमी स्कूल ले लिया, मैंने डमी स्कूल लिया था, it was shit, I had my worst experience there, इतना गंदा एक्सपीरियंस था मेरा।
मेरे स्कूल में वेन एवर यू आर लाइक रशिंग इन टू सच डिसीजंस, तुम्हारा पैसा और टाइम दोनों जाता है। एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओ टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मनी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बोथ आर इम्पॉर्टेंट आज के दिन में। सो इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। एंड मैंने डमी लिया था तो इट वॉज लाइक 1 लाख समथिंग रुपीज़ फॉर माई कोचिंग ऑफ 2 years। एंड स्कूल में मेरा 30 या समथिंग 1000 रुपीज़ था पर ईयर। सो इट्स लाइक 60,000 2 साल का। इट वॉज सच अ वेस्ट ब्रो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मेरे स्कूल में डमी स्कूल्स रियली डोंट केयर अबाउट वॉट द स्टूडेंट्स आर डूइंग, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कोचिंग में जा रहे हो। इन देयर हेड इट्स लाइक कोचिंग के बच्चे हैं, उनको आता ही होगा। So most of the dummy schools, they do not care about the students. They do not care कि आप क्या पढ़ रहे हो and all that. And if your coaching is not going good and तुम्हारा बहुत कुछ बैकलॉग लग जाता है और समथिंग लाइक दैट, देन इट्स इवन वर्स फॉर यू कि बाद में जो प्रैक्टिकल्स होता है, डमी स्कूल्स किसी भी तरह प्रैक्टिकल करा देता है एंड कम्प्लीटली आप पे आ जाता है कि आप कैसे उसके बाद कोप अप करोगे चीज़ों के साथ। स्पेशली जब आप 12th में आ जाते हो। 11th में मेरा एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। आई हार्डली डिड लाइक 1 or 2 प्रैक्टिकल्स फॉर फिज़िक्स एंड फॉर बायोलॉजी। बाकी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं था मेरा बिल्कुल भी। आई हैड नो आइडिया। मैंने क्लास 11 में टाइट्रेशन किया ही नहीं था। डमी स्कूल्स आई डो नॉट सजेस्ट। आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ आप कोचिंग लो ना लो, आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, डमी स्कूल मत लो। अभी तो इनफैक्ट सीबीएसई ने बैन कर दिया है ना डमी स्कूल, कम्प्लीटली मना कर दिया कि डमी स्कूल से नहीं करना है ऑल दैट। बट स्टिल डमी स्कूल चलता है। मैं थी 12th में ना, तभी ही ये हो गया था कि डमी स्कूल नहीं चलेगा काइंड ऑफ थिंकिंग। सो इट्स बेटर दैट यू डोंट गो इनटू ऑल दिस। डमी स्कूल बिल्कुल मत लेना। एंड डमी स्कूल अगर तुमने ले लिया है, प्लीज़ चेंज इट। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप चेंज कर सकते हो विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 11th ओनली। आप स्कूल चेंज कर सकते हो, ये कर सकते हो, बिकॉज बाद में नहीं होगा। आई हैव ट्राइड टू चेंज स्कूल्स, बाद में नहीं होता है। यू हैव टू आइदर हैव लाइक अ ट्रांसफ़र और समथिंग लाइक दैट, तभी जाके आपका 11th से 12th में एडमिशन होता है। अदरवाइज द पॉसिबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट नील, लाइक नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है कि 11th में थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, एंड अगर इफ़ यू आर अ नॉर्मल स्कूल, द एडवांटेज इज़ दैट इफ़ यू थिंक कि science is not working out for you and you find interest in art, commerce or anything like that, then you can change your stream being in the same school, right? क्योंकि सी आप अच्छे स्कूल में हो तो उसके बाद आप साइंस से हट के आपने कोचिंग भी छोड़ दिया। कोचिंग में, मेरे कोचिंग में एटलीस्ट देयर वाज दिस थिंग कि यू कैन रिफंड योर मनी विद इफ़ यू आर जस्ट देयर फॉर फ्यू वीक्स एंड 6 मंथ्स अगर हो गए ना, फिर भी आप कोचिंग छोड़ सकते हो एंड दे विल लाइक उससे उसके बाद वो 6 मंथ का ही पैसा लाइक दे विल टेक, अदरवाइज दे विल नॉट टेक। यू कैन जस्ट लीव, तुम्हारा मनी ज़्यादा और नहीं जाएगा। बट मुझे ये सब बताया नहीं था, मुझे नहीं पता था। दे विल नेवर टेल यू ब्रो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड जो आपके पास एक ब्रोशर देता है वो लोग। पढ़ लो प्लीज़, पढ़ लो। कई बार तो उसमें भी शायद नहीं होता होगा, बट होगा ही मोस्टली। मैंने नहीं पढ़ा था क्लियरली, इट वॉज माई फॉल्ट, आई गेट इट। Now we can move on to my next story, which is basically about my coaching. But I think वो करने से मेरा वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा and I don't want that. So I will not talk about my coaching in this video. I will talk about my coaching experience in some other video if you guys want it. And lastly, about my 12th board, bro, my boards did not go well. Okay, that's all I can say. My boards did not go well because I just told you बहुत कुछ है। इनफैक्ट द मेजर रीज़न ऑफ माई एक्सट्रीम लेवल ऑफ डाउनफॉल इन एकेडमिक्स इज़ बिकॉज ऑफ माई कोचिंग, ठीक है। तो वो स्टोरी तो डिफरेंट हो गया, उसमें बहुत कुछ है टू ऐड ऑन। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो I can just say that my boards did not really go well. I somehow managed to give my exams, ये सब लेके जैसे तैसे सिलेबस ख़त्म करके। I was like really stressed out as well. अभी रिज़ल्ट आई डोंट नो क्या आएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अच्छा नहीं किया है इतना, ठीक है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में आई हैव ट्राइड कि मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो भी इतना गंदा ना हो, लाइक 75-70 के नीचे ना हो। सो आई एम होपिंग कि ऐसा नहीं होगा, फिंगर क्रॉस्ड। नाउ नेक्स्ट इज़ अगर मैं नीट दूंगी कि नहीं। आई डिड एक्चुअली रजिस्टर फॉर इट। अभी मेरा एडमिट कार्ड भी आने वाला है एंड आई एम लाइक सो कुक्ड, क्योंकि
मैंने कहाँ पढ़ा है भाई, मैंने पढ़ाई तो नहीं है, बट आई विल बी गिविंग नीट, क्योंकि आई डोंट नो, माय पेरेंट्स आस्क्ड मी टू गिव ट्राई वंस, तो दे दूँगी मैं नीट ऐसे। एंड मैंने सीयूईटी के लिए फॉर्म भरा है, तो मैं सीयूईटी तो दूँगी, दैट इज़ फॉर श्योर। So that was it for this video. If you liked it, you can subscribe to my channel and you can comment down if you want to know about the coaching things, what happened and all. It will be great if I would like to share my experience honestly. And you can also comment down about your 10th boards or about your experience if you are in 12th or like you're done with 12th. You can tell me your experience as well. Bye.